Hello students, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, guys. So students, कौन सा था? Which one was? Which discussion was today? Homework, guys. What was the homework? So there was some booklet for photoelectric effect and the photoelectric HCV, I guess. Okay, Jay. सर HCV का 13th कर सकता हूँ. HCV का 13th वाला, okay. Yes, sir, उसका second part. HCV 13, 1 minute. Is HCV a photoelectric effect discussed? HCV का photoelectric effect, guys, इस बैच में शायद नहीं हुआ है ना? It's not discussed, I guess. No, sir, mostly नहीं हुआ. ना, हाँ, इस बैच में नहीं हुआ है. So will you be taking those doubts too? Okay. चलो ठीक है गाइस, तो फिर जो है HCV फर्स्ट भी आ गई. ओके. Hello, sir. Yes, हाँ. Sir, I have some doubts in objective 1 of HCV. HCV का ओके. So ठीक है, पहला गाइस, so एक बार समर्थ, we had given that as a homework ना, or was homework ना? Yes, sir. Okay, ठीक है. So first कौन सा था? Somebody was saying 13th one. Okay. 13th में जो है 13th का B part. HCV Yes. exercise. So HCV exercise का 13th का B. You have calculate the longest and the next smaller wavelength of the photon possible. There are two neutral particles. जो है some mechanism, some charge is transferred from one particle to another. और जो है and the electric potential energy loss is completely converted into photon. Oh, ठीक है. Okay, तो से if one electron is transferred from one particle to another, so potential energy क्या आ जाएगा? K जो है 1/4πε0 Q1 Q2 upon distance is 1 square R, distance is 1 K Q1 Q2 by R, और उसको जो है आप you will convert this as HC by यहाँ पे you want to find wavelength. Okay, wavelength. फिर अगर मान लो 2 electron is transferred from one to another, so क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 और 2e K Q1 Q2 जो है एक प्लस 2e दूसरा माइनस 2e डिवाइड बाय R SC by λ2. करेक्ट. सो तो पहला वाला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये वाला हो गया, फिर नेक्स्ट ये वाला हो जाएगा. सर आपने 2E क्यों लिया? Oh, जैसे से your neutral particles are there and you are transferring charge. Charge is quantized. Q is equal to any integral multiple of number of electrons. Okay, sir. Got it. है ना? Yes, sir. Okay. Yes, guys. Next one कौन सा? So I'm going to solve the 12th one. 12th वाला. 12th में जो है show that it is not possible for a photon to be completely absorbed by a free electron. Okay, so you have a free electron and say you have a photon coming. This is a photon here. And say ये absorb कर लिया suppose. So it will have velocity some v. ठीक है, तो ये photon आ रहा है. Momentum conservation, first concept. So this will be momentum conservation से क्या जाएगा इसमें? hc by lambda, no, h by lambda is the initial momentum which is photon, और ये m into vc v. guys हम अभी classical mechanics के range में ही we can solve, we can argue
और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, सो एनर्जी कंजर्वेशन से जो है एनर्जी hc बाय लैम्डा, इसका तो कुछ नहीं है, और इसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी हो गई m/2v²। करेक्ट, सो जो है h बाय लैम्डा की जगह लेट अस राइट mv c, h बाय लैम्डा की जगह mv, और ये c हो जाएगा m/2v²। m कैंसल्स आउट, v भी कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 2c। करेक्ट, योला? तो v की वैल्यू 2c अगर आ रहा है, मतलब इतना हाई स्पीड्स में है, तो ये वैसे इक्वेशन भी रॉन्ग हो गया। फिर तो क्या हो जाएगा, m नॉट नहीं, m नहीं रह जाएगा, मास कैसे लिखेंगे, फिर वो रिलेटिविटी में चला जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v²/c²। तो ये कंसेप्ट ही अलग हो जाएंगे। So we have relativity in question. नो, इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस। Oh, सो स्पीड काफी ज्यादा हो जाएगा। अशोक, हाँ सर, सर मुझे एक पूछना था, 1 सेकंड। सर am I audible? यस यस यस, हाँ अशोक, यस अशोक, हाँ। हाँ सर, तो मुझे पूछना था कि ये क्वेश्चन में इतना सब करने की जगह हम लोग खाली ये नहीं बोल सकते क्या कि जैसे हमने मोमेंटम कंजर्वेशन, स्प्रिंग ब्लॉक मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या था कि मतलब एक ब्लॉक को हमने वेलोसिटी दिया, एक ब्लॉक रेस्ट पे कोलाइड होने के बाद दूसरे ब्लॉक का वेलोसिटी बढ़ता आएगा, उसका एनर्जी बढ़ेगा। तो एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों के पास सेम वेलोसिटी रहेगा एंड उनका रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, मतलब यहाँ पे ई अगर हम लोग इन इलास्टिक मान रहे सिंस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एक कोई सर्टेन केस आएगा जहाँ पे उनका रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो फोटोन और एब्जॉर्ब नहीं होगा उसके बियॉन्ड। तो मतलब जैसे यहाँ पे एक फोटोन था, एंड फोटोन वाज ना, फोटोन उसमें सर फोटोन जाके उस पर कोलाइड कर रहा है, सिंस वहाँ पे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो टेक्निकली हम लोग कह सकते हैं कि ये एक इनइलास्टिक कोलिशन है, राइट। एंड उससे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन अगर करेंगे तो फोटोन का तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा एंड इसका इलेक्ट्रॉन का बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा सर्टेन वेलोसिटी आएगा जहाँ पे दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, सो बोथ विल बी मूविंग विद द सेम स्पीड। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो रहा है तो और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो उस पॉइंट ऑनवर्ड्स दोनों मतलब एक फिर ही कॉमन। फिर उस केस में उसका स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो गया ना, इलेक्ट्रॉन का। सर नहीं, फोटोन का भी तो एनर्जी कम हो रहा है ना। हाँ हाँ, सर लेकिन फोटोन, ऑल फोटॉन्स ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। सर बट उसका E इक्वल्स mc को ऐसे देखेंगे तो उसका मास भी कम हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। फोटोन का फोटोन हैज अ रेस्ट मास 0। हाँ सर वो मुझे समझा, बट E इक्वल्स mc स्क्वायर से अगर मतलब E कम हो रहा है। अच्छा E is नहीं, आई equal to गॉट इट mc, सर, हाँ हाँ, E is आई equal गॉट to इट। mc स्क्वायर, तो दैट इज अ मास डिफेक्ट। यस यस। हाँ हाँ, चलो ठीक है। sir, यस जय, हाँ। so the photon absorb हो रहा है तो inelastic collision हुआ ना, how are we conserving energy? नहीं मतलब बेसिकली हम बोल रहे हैं सिस्टम का एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और हाँ, डिस्ट्रॉयड। बट सर वो लाइट के फॉर्म में रिलीज हो सकता है ना सिस्टम का एनर्जी। ओ यू आर सेइंग कि मतलब वो इमीडिएटली कुछ दूसरा फोटोन रिलीज कर देगा, राइट? हाँ सर। सो ओके, फिर तो फिर वैसे ही प्रूव हो जाता है कि वो इट कैन नॉट कंप्लीटली एब्जॉर्ब किया, मतलब पूरे बीच कुछ रिलीज ही कर दिया, राइट? So like contradiction से प्रूव करेंगे, like if we take complete absorption तो ऐसे V is to C आता है, which is not possible, which means पूरा एनर्जी absorb नहीं होगा वैसे। हाँ, v is equal to c का मतलब पार्टिकल का स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा, नॉट पॉसिबल। Okay sir, so like we are in a way proving it by contradiction कि ये possible नहीं है पूरा absorption। ये हाँ, करेक्ट, Okay, हाँ।
सर ऑब्जेक्टिव 1 का फिफ्थ बता सकते हो क्या? Oh, yes. Objective 1. Objective 1 का fifth equation. Oh, the E is equal to PC is valid for, okay, SCV objective 1 जो है एनर्जी ना, हाँ, तो किसके किसके लिए एनर्जी जो है, you write the energy of photon as hc by lambda और p is h by lambda for everything. तो ये तो लिख दिया आपने, p h by lambda को p रखा, pc. इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी, राइट, तो you want to write the electron की एनर्जी, kinetic energy, so half m by 2 v square. So ये तो जो है pv by 2 आ जाएगा ना, kinetic energy of the electron. Come on. यस सर. So is TC for photon only ना? ओके सर, मतलब एक्चुअली मैंने वो सी कंसीडर नहीं किया, मुझे लगा. सॉरी सर. C is the speed of light है ना? यस सर, इट विल बी वैलिड फॉर ओनली लाइट. यस सर. Okay. Discuss the second one also. And the second one, so you are saying कि two photons have equal wavelengths, have equal momentum. Okay, momentum. Okay. So two photons having equal lengths have equal momentum. Momentum is a vector quantity, right? यहाँ पर. So equal wavelengths है, लेकिन मान लो अलग-अलग directions में जा रहे हैं. Oh, okay, sir. Consider it as vector. हाँ, I guess they are trying to judge वो direction से होगा. फिर क्या आएगा आंसर इसका? Answer is D. I was confused between A and D only. Okay. So answer is D. Yes, equal linear momenta. Okay, magnitude equal and then equal wavelength. हाँ, wavelength तो ठीक है, हम comparison कर सकते हैं भाई, ठीक है. Yes, Amol, which is the doubt next? HCV में और कुछ नहीं? नो सर, मतलब और सर एक्सरसाइजेस में डाउट्स थे. Yes, सर हाँ, 31st में एक डाउट था. HCV का, okay, one सर minute. मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट लास्ट स्टेप पे मतलब मेरा आंसर हाफ आ रहा है जो रिपोर्टेड आंसर है और पीछे, बट Oh. मतलब यहाँ पे जो गिवन आंसर है वो पॉसिबल रहेगा ओनली इफ प्लेट के दोनों सरफेसेस पे चार्ज रहेगा, राइट? 1 minute. Okay, from a large metal plate. भाई metal plate है और उसका field आपने क्या लिया? Sigma by epsilon naught? यस सर. Sigma by epsilon naught. हाँ. So उससे भी आंसर रॉन्ग आ रहा है. और सर नहीं सर. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लेना था. हाँ सिग्मा सर, क्योंकि वो लोग ने मेंशन नहीं किया कि दोनों फेसेस पे चार्ज रहेगा कि. Oh, no, it's a metal plate. Metal plate and chapter का name is electrostatics. तो charges will पूरा distribute हो जाएगा भाई in electrostatic condition. अच्छा, ओके सर. Electrostatic condition में जैसे ये जो भी चार्ज डालोगे throughout जो है distribute हो जाएगा, तो इधर भी आएगा और पीछे भी आ जाएगा. सो फिर तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर होना चाहिए. So yes, metal plate. सो तो बट द आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से आ रहा है. अरे ये क्या हो गया? From a large metal plate having charge density, is it? अरे sigma by ऐसा क्यों आ रहा है? 31st अशोक 31st में यार जो है find the maximum, ठीक है. जैसे जो है इसका wavelength is 400, तो ठीक है. Kinetic energy of the max will be 1240 divided by 400 minus 1.9 3. तो ये 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. अब जो है स्मॉल सीजियम प्लेट इज केप्ट फ्रॉम अ लार्ज, सीजियम से इमिशन हो रहा है, ठीक है. हाँ, तो इसकी तरफ ये एक्सेलेरेट होंगे लोग. तो अब ये डेल्टा वी
तो kinetic energy will be varying from 0 से 1.2 electron volt the ejected electrons. डेल्टा वी कैसे निकाला? सिग्मा बाई एप्सिलॉन इनटू डी से आना चाहिए ना था ज्यादा. सिग्मा की वैल्यू कितनी है यार? सिग्मा है 10 टू पावर माइनस 9 और एप्सिलॉन नॉट से आ रहा है 8.85 इन 10 टू पावर कृष्णा ओ माइनस सॉरी सर, एक्चुअली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से आ रहा है. मैंने एक्चुअली पहले सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा था ना, तो लाइक मुझे लगा उससे आ रहा था. सॉरी सर. ओके एंड दिस इज डेल्टा वी ना. हाँ तो भाई वही करेंगे ना. जैसे क्या होगा 0 प्लस डेल्टा वी और इधर वाला क्या हो जाएगा 1.2 प्लस डेल्टा वी. यस सर. ठीक है. यस गाइस. हाँ So can you solve 28th. 28 28. 32, 33, 30? ओहो 28th में जो है इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड वाला जो है ओके रेडियस. ठीक है. आई चलो एक फॉर्मूला आर इज एम वी बाई क्यू बी. यू गाइस कैन एक्सेप्ट. मैग्नेटिज्म में सर अभी पढ़ाएंगे आगे. सर वो फॉर्मूला तो होगा लाइक R is mu by Q. Oh, you know that. ठीक है. वो हो गया. Yes. Okay. In the in an experiment photodetector, the emitter and the collector plates are at separation of 10s. तो यहाँ से जो भाई ठीक है. इसमें से यहाँ से जो है ये निकल रहे हैं ना. एंड यहाँ से जो पार्टिकल निकला और सी मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड. सो सर्कुलर मोशन में क्या होगा? ये पार्टिकल ये उसकी वेलोसिटी और ये कहलाएगा रेडियल डायरेक्शन. यहाँ रेडियल डायरेक्शन में कहीं आगे मिलेगा सेंटर और ये प्रोटेक्टर पकड़ के हम सर्कल बनाते हैं. ऐसा सर्कल बना लेते हैं सर्कल मोशन. और हम क्या करेंगे इसको इस प्लेट को जस्ट मिस कराएंगे. ओके सो दिस डिस्टेंस विल बी द रेडियस ये वाला है ना. सो For zero current, like limiting case. yes. Find Okay, the sir. minimum value of V for which the current resistor is 0. ठीक है. अब जो है देखो वेवलेंथ 400 और 600 वाला है. सो 400 वाले का 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर 600 ये कितना आएगा यार? 1240 बाई 600. इसका कितना आएगा गाइस ये वाला? 2.066. 2.16. 2.16. ओके 2.16. ओके चलो भाई ठीक है. 2.16 So इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2.06 also. Oh, sorry, 2.06. 2.06 electron volt and तो 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गए भाई. चलो ठीक है. अब जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. अब पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द करंट रजिस्टर्ड इज 0. सो यार किनको रोकना पड़ेगा यार? आर जो है किसको इसको रोक लेंगे तो चलेगा ना गाइस ये वाला है ना. तो ठीक है आर निकालते हैं. देखो मिनिमम वैल्यू क्योंकि ये हाई स्पीड वाले हैं. ठीक है तो आर इज एम वी बाई क्यू बी. आर जो है कितना हो जाएगा? रेडियस इज 10 सेंटीमीटर 0.1. ओके नाउ यू हैव इसका काइनेटिक एनर्जी. तो इसका लीनियर मोमेंटम चाहिए यार. ओके लीनियर मोमेंटम कैसे आएगा? p स्क्वायर बाय 2. So root 2 mk. ओके √2 mke divided by q into b. q into b. So now जो है ठीक है. इसमें बाकी सब तो हमें पता ही है ना इसमें डेटा. यस Okay, हाँ समझा सर. Like Ke we got it like from Ke max and mass and E is known. Got it. एक बार जल्दी से वैल्यूज पुट अप करके देखो तो यार आंसर आ रहा है कि नहीं. एक बार Okay, sir.
हाँ यस सर मैं छोड़ रहा हाँ जी, ओके ओके। So can you start 33rd and 34th? 33rd, okay, okay. yes sir. So So 32nd also sir. 32nd, okay, okay. And also can you show the previous slide for a second? Yes, yes, हाँ. Thank you sir. So 32nd में consider the situation of the previous problem. जो है ठीक है 32nd. Consider the situation of fastest electron parallel to the large metal plate. Consider the first. Okay, 31 का क्या क्या है यार यहाँ पर जो है there is a cesium का ये वाला है, ये यहाँ से emission हो रहा है and having a charge density on the surface within a plate जो है और ठीक है consider situation of the fastest electron emitted parallel to the large metal plate. Find the displacement of this electron parallel to the velocity before it strikes. Oh, okay, okay, ऐसा है क्या? So like this, ये ऐसा and this is a large metal plate और ये ऐसा यहाँ से जो है I guess fastest electron parallel to the large metal plate. Okay, ये ऐसा. So ठीक है. So इसका front view पैरेलल कैसा भी ठीक है. फील्ड का डायरेक्शन किधर है यहाँ पर? इसको अट्रैक्ट करेगा ना, राइट? दिस वे फील्ड जो है यहाँ पर. सो इसको फोर्स तो इधर लगाएगा, फोर्स तो इधर लगेगा. ओके. सो पैरेलल तो जो है ठीक है. इसके लिए हम पैरेलल टू द प्लेट ऐसे भी ज्यादा ये अच्छा रहेगा. ऐसे कर लेते हैं पैरेलल ऐसा. एंड लेट अस ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू में प्लेट ऐसा दिखेगा और ये वाला ऐसा एंड दिस इज लाइक दिस. ये स्पीड हमें पता है. फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन तो क्या जाएगा काइनेटिक एनर्जी जिसका मैक्सिमम. सो m/2 u स्क्वायर इज जिसका ke max एंड ke max इसके लिए कितना आया था 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके. सो अब ये डिस्टेंस हमें पता है. अब काइनेमेटिक्स से करते हैं. सो इस डायरेक्शन में से दिस इज x डायरेक्शन में ax विल बी फोर्स बाय मास. फोर्स क्या होगा? चार्ज इनटू फील्ड बाय मास. और ये डिस्टेंस इज गिवन 10. ओह हाँ, ये डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर. नहीं, कितना है ये वाला डिस्टेंस? ये वाला कितना है गाइस डिस्टेंस? 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर से, सॉरी, दिस इज 20 सेंटीमीटर. सो हाँ, ये डिस्टेंस हम x डायरेक्शन में लिख सकते हैं. इक्वेशन s इज ut प्लस हाफ ad स्क्वायर इन x डायरेक्शन काइनेमेटिक्स. सो ये तो ठीक है. एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर हाफ. एक्सेलरेशन क्या होगा? दिस वैल्यू e by m और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस विल बी सिग्मा e अपॉन m एप्सिलॉन नॉट t स्क्वायर. तो यहाँ से वी कैन फाइंड t. ठीक है, यहाँ से ये t आ गया. सो ठीक है, यहाँ से t आ गया. फिर t की वैल्यू ये आ गई. फिर आप ये निकालना है y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट. सो y डायरेक्शन में sy इज सिंपली uy into t. uy आपके पास है Oh, ही got it sir. तो क्वेश्चन नहीं समझा था sir. हाँ, डायग्राम थोड़ा सा डायग्राम ये हाँ क्लियर नहीं था ना. मतलब आई मीन हाँ सर लाइक कैसे वो हो रहा था ओरिएंटेड. क्वेश्चन लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है. got it sir. ठीक है. फिर नाउ a horizontal cesium plate is moved. Next question. So you have a horizontal cesium plate is moved vertically downward at a speed. And okay, so you have this is a plate, horizontal plate, or it is moved downwards with a speed v, some v naught,
in a room full of radiations, this and above. So what should be the minimum value of V so that the vertical upward component of velocity is non-positive for each photoelectron? Oh, ठीक है. So ठीक है, इसमें जो है you can find energy, kinetic energy कितनी हो जाएगी? 1240 divide by 250 minus 1.9. ये kinetic energy maximum होगी. So मान लो अब ये तो क्या स्पीड, दिस इज द स्पीड, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ m/2 और ये v रिलेटिव स्क्वायर, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन mv/2 और इनटू v रिलेटिव स्क्वायर, इतने रिलेटिव स्पीड से निकला. अब ये इसकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए, जो है 0 होनी चाहिए, मतलब लिमिटिंग केस क्या हो जाएगा, दिस v रिलेटिव इज v0. तो इफ v रिलेटिव इज इक्वल टू v0 तो मतलब क्या हो जाएगा, ये रेस्ट पे हो जाएगा, v रिलेटिव इज v0 ना गाइस, ये वाला v relative is v0. So ये वैसे हो गया ना, जैसे guys you understood, जैसे मान लो ये खुद 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में मान लो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर रिलीज किया, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. दिस इज इफ दिस इज v relative. Yes, sir. So that means v relative must be equal to the speed of the plate, then its speed will be 0. अगर ये v0 ज्यादा हो गया तो वो जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगी ना, नेट वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी. मान लो इसके रिलेटिव 20 से रिलीज किया गया, ये वाला मान लो ये 20 है, से दिस इज 20 और v रिलेटिव 18 है, तो इसका मतलब क्या है, नेट वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गई, ये जो पार्टिकल की नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नीचे की तरफ 2 हो जाएगी ना, राइट? यस सर. हाँ यस सर, हाँ सर अभी हो जाएगा, तो क्वेश्चन में ही डाउट था. ओके ओके. नाउ फॉर द 34th के लिए स्मॉल मेटल प्लेट इज फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ, ठीक है, d फ्रॉम अ आयन, a monochromatic light, photoelectrons are emitted. Find the maximum wavelength of the light beam so that some of the photoelectrons may go around the ion along a circle. Okay, उसके around circle में जाना है. तो circle में जाने के लिए ठीक है, fixed ion मतलब point charge के around circular motion होना चाहिए. तो circular motion के लिए न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन क्या आएगा, net force in radial direction is equal to mass into radial acceleration. A radial acceleration v square by r. R is d here, and this force क्या हो जाएगा, force will be k q1 q2 by r square. K q1 q2 दोनों सिंगली, ये सिंगल आयनाइज्ड और इलेक्ट्रॉन है, k q1 q2 by ये हो जाएगा, और तो यहाँ से this d will go out here, so mv square is e square by 4 pi epsilon d. This is mv square is 4 e square by 4 pi epsilon d. और फिर जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, वी कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी जो है इसका, राइट, आप निकाल सकते हो. काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, जो भी है काइनेटिक एनर्जी मैक्स विल बी hc by lambda minus phi. So this is mv square by 2 is hc by lambda minus phi, और mv square की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे. So distance is d. How does it mean that the radius will also be d? Oh, दिया है, some of the particles may go around the ion along a circle, है ना. So if say यहाँ पर ये आयन है, यहाँ से निकला प्लेट और ये वाली ऐसा, तो इसके राउंड सर्कुलर मोशन.
So, but like radius d हमें जरूरी थोड़ी है. Like if it is projected with the velocity like something inclined to it, then Oh. radius will be greater than d, right? Oh no, but in circular motion you cannot have जो है radial velocity. You'll always have tangential only. Correct. अगर ऐसा say if this is the ion, so this is the center. It is fixed now. Center is fixed. Suppose you are saying कि velocity is this way. So this cannot be. This particle cannot form circular motion. Only this particle will form circular motion. So, first. Vt will be there. V radial will be 0. Yes, guys. Next doubt. So I had a doubt in objective 2, question 6. Objective 2 का question number 6. यार बोहर वाला नहीं किया क्या तुम लोग? You are not done. Bohr's theory. ठीक है. होमवर्क क्या था मेरे को पता नहीं. Oh, homework was not given क्या? अरे. सर मेरे को पता नहीं. Oh, I forgot. Yeah. Oh. So ठीक है. Objective 2 का 6 में the collector plate in photonic experiment is kept vertically above the emitter plate. Light source is put on. Saturation current is recorded. Electric field is switch on, which has a vertically downward direction. Okay. So electric field switch on कर दी. Oh, saturation current is achieved. Saturation current record हो चुका है. उसके बाद electric field का लगा रहे हैं. Okay. So numbers constant है ना. Saturation current मतलब पूरा saturation current achieve हो चुका है, मतलब पूरे जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने निकल रहे थे उतने वहां पर सेकंड पहुंच रहे हैं स्टेडी स्टेट. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद अब क्या होगा? the photo current will increase. फोटो करंट तो भाई फोटो करंट क्यों? जिस रेट से निकल रहे हैं वहां उसी रेट से पहुंचेंगे ना ये वाला, राइट ना अमोक? फोटो करंट क्यों बढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, करेक्ट ना? हाँ, काइनेटिक एनर्जी वहां, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट कर देगा, तो ठीक है स्पीड बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की. स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. But sir, the collector plate is placed above the air, na? Okay. और electric field is downwards, तो emitter से upwards जाएंगे ना? इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ ऊपर जाएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है तो फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा. कलेक्टर इज अबव. Oh yes sir, sorry. Oh, you thought कि other way around, वो नीचे Yes. है ऊपर. Okay, ठीक है. Okay. So बुकलेट में भी नहीं था होमवर्क का, इस बुकलेट का भी कुछ दिया होगा ना? हाँ sir, हम Yes, हाँ बुकलेट का भी. Yes, please ask. Not getting the 26th of HCV exercise. HCV exercise का 26 वाला. Okay. In experiment on photodetector, light of wavelength is instead of cesium. There, potential of the collector plate is sufficiently positive with respect to so that the current reaches its saturation value. ठीक है. Okay, इसमें जो है क्या क्या डेटा गिवन है अभी चलो देखते हैं. HCV exercise का 26 one. तो ठीक है, इसमें जो है पावर गिवन है. ओके हाँ, पावर इज इक्वल टू, यस वी कैन डू दिस वे. पावर इज इक्वल टू n into hc by lambda. पावर 5 वॉट का है. n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इस बीम में जितने जाएंगे, है ना. सो अब जो है हाउ शुड आई डू इसको ना, एनर्जी को लेट मी राइट दिस वे. 1240 डिवाइड बाय 400 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ना.
फिर उसको ना 1.6 into 10 to the power minus 19 कर दूंगा, तो ये n हो गया, ये वाला 3.1 और this is 1.6 into 10 to the power minus 19. This is the equation. This is number of photons per second. ठीक है, और इसका efficiency देखो कितना है. अगर 10 to power 6 photons जाते हैं तो एक prisoner बाहर आता है. So 10 to power 6 photons के लिए एक आता है, तो n photons per second जाएंगे, n. तो उसके लिए जो है 1 के लिए क्या हो जाएगा? So I got my mistake. I'd actually made a calculation error. है ना, हाँ. So current में जो है simply this n by 10 to power 6 कर देते हैं into e. So you will have n की value as 5 divided by 3.1 into 1.6 into 10 to power minus 19. This is n की value, and you have e. Okay, हाँ. So ये अरे क्या हो गया? और नीचे 10 to power 6 भी है. Okay, 10 to power 6, and ये और ये cancel हो रहा है. Please check ये correct है क्या? Yes, sir. Thank you. Okay. This much ampere, microampere. Okay. Yes, students. Next one. Guys, yes, हाँ. After HCV booklet में doubts. अशोक booklet नहीं किया? किया सर. Done. No doubt. सर एक्सरसाइज 4 में है. Exercise 4 में. Okay, I'm done. ठीक है. नहीं, exercise 1 का पहले exercise 1. और उसमें ना वो भी कर रहे हो ना guys, ये जो है यार ये सब एक objective questions. I mean, it's on page 290, I guess. आपके में क्या बुकलेट में पेज 290 में होगा? Yes, sir. सर इसमें थर्मायंस का मतलब क्या है? क्या? Which one, Krishna? इसमें सेकंड वाले में थर्मायंस का मतलब क्या होगा? Second वाले में. Oh, क्या? Increasing the accelerating voltage of the electron emitted as increasing the accelerated voltage of the electrons emitted as ये क्या है? Thermions. नहीं, अपन तो ये तो नहीं पता मुझे. बस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज देख लेते ना यार, उससे जज करेंगे तो कुछ आएगा क्या मानस? सर मुझे लगा कुछ और है इसमें. आई थॉट कि उसमें ऐसा नहीं होगा क्या? पेज आई गेस इट्स इन पेज 290 इन योर पेज, मेरे में 289 में. सेकंड क्वेश्चन वही वाला ना, लैम्डा इज इक्वल टू ये वाला बीपी. सो इसको ये बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, लाइक दिस वन. हाँ सर, इससे आ जाए. ओके. तो इसके पूरे 10 क्वेश्चंस नोट आउट इसमें. फर्स्ट वाला एक बार बता सकते हैं? फर्स्ट वाला, हाँ. इफ इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट इज इंक्रीज्ड, चलो ठीक है. सो इसका जो है इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट सोर्स इज इंक्रीज्ड. कुछ दिया नहीं है यार. Ni is equal to intensity is equal to n into hc by lambda. So कुछ given नहीं है, कैसे बढ़ाया है? So ठीक है, I will keep my options open. It necessarily follows that. So ठीक है, let me assume ये assumption है ना, as assumption lambda is not changed. तो इस assumption पे क्या होता है देखते हैं. If intensity is increased, not change, मतलब n increased तो क्या हो जाएगा इस यहाँ पर? Photon emission increase. Number of the photoelectrons emitted will increase ना. अब जो है
if the intensity of a light source is increased, necessarily follows that there is an increase in the kinetic energy of the emitted photons. Wavelength has decreased. Necessary photon emission rate has increased. So guys, क्या होगा यहाँ photon emission rate मतलब photo electron का क्या? So photon emission rate मतलब like n increase होगा ना? You mean to say. Photon emission is number of photons emitted per second. So Okay, that okay, will okay. be of n, right? Okay, okay, okay. ठीक है, तो So ये none of assumption them is like surely increasing. Like यस सर कमेंट कैसे करेंगे इसमें से कौन हाँ, सा वाला ऑप्शन होगा? ये इस assumption पे ना, इस assumption पे कुछ दिया नहीं है, तो usually लेकिन guys जेई में ऐसा ambiguity आता नहीं है. सब but वो option B भी दिया है वो लोग ने, wavelength has decreased. तो lambda is not changed, वो like कैसे मान लो? Oh. तो उससे ऑप्शन सी भी B लेंगे. भी correct हो सकता है, हाँ. B yes, C का कुछ ठीक है, हाँ हाँ. A भी हो जाएगा अगर like lambda is changed to them. सर बट इंटेंसिटी बढ़ाने से लैम्डा कैसे चेंज होगा? नहीं, I mean intensity वो बीम का जो है, if intensity of a light source is increased, मतलब उस सोर्स से, बस ये भी बताना चाहिए कि उस सोर्स से निकलने वाले फोटॉन्स का वेवलेंथ सेम है in the initial and final condition, then only we can comment on it. Correct guys, you know? So वहां पर थोड़ा सा ये वाला डेटा मिसिंग है, लेकिन ठीक है, अपन ये वाला ऐड अप कर लेते हैं. सर और like you can say like A B C तीनों में वेवलेंथ चेंज करने से चेंज जा रहा है और D में N चेंज करने से, N सिंगल करेक्ट है तो D ही होगा. ओके, लेकिन जो है, हाँ फिर भी ओके देना तो चाहिए. Like they should have given that lambda is constant. ठीक है. Yes guys, next one. सर पेज 286 में एक डाउट था. Page 286 वाला. Okay, good, good. Page 286. हाँ हाँ. Which question it is? The sixth one. Page 286, sixth question. In a photoelectric effect, point source of light emits itna photons. The source is located at a distance of from the center of a metallic sphere of work function itna, and radius is na, efficiency of the photoelectron is na, assuming that an initially is neutral photoelectron initially. Okay, हाँ. Which one? कैसे इसमें ये समूह? हाँ. Please tell the doubt. Yes, just sir, D part में डाउट था, फ्रीक्वेंसी और टाइम जो सॉल्यूशन समझ नहीं आया क्या दिया है. For which part? D part. B part. Okay. D D part. D part में जो है टाइम T निकालना है. टाइम T निकालना है. Photoelectric effect has stopped. Okay, okay. By okay. इसमें तो ऐसा हो जाएगा ना वो जो है पेज 286. जैसे से अब देखो इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं इसमें से. सो इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं तो ये स्फीयर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. पॉजिटिव चार्ज इसमें बिल्डअप होते जाएगा, राइट. अब जो है मान लो कुछ देर के बाद आफ्टर टाइम T, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है? निकलने की कोशिश कर रहा है. वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, राइट. अब जो है वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, अब अगर मान लो फिर ये क्या करेगा? इसको पुल ही कर लेगा, राइट. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से निकलने भी नहीं देगा. सो दैट मीन्स hc by lambda minus वर्क फंक्शन के ई मैक्स. के ई मैक्स क्या हो जाएगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल. सो E इंटू पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर. और पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर कैसे लिखोगे? K into the charge upon radius. Is this correct? Amo?
Yes, sir. This is great. हाँ Sir, exercise 1, 7th question. एक्सरसाइज 1 का 7th वन. ओके एक्सरसाइज 1 7 क्वेश्चन. ओके एक्सरसाइज 1 7 क्वेश्चन में क्या गिवन है इसमें यू हैव so you have a sensor exposed to a lamp of power P. So ठीक है, there is a lamp of power P. So इससे क्या होंगे, radiations सभी directions में जाएंगे. Okay. So it's a point source. So we can write power P naught is equal to n into hc by lambda. So you want to find कितने in time t. Okay, हाँ, power into time energy हो जाएगा. चलो ठीक है, पावर इंटू टाइम एनर्जी. एनर्जी को ना n इंटू एच सी बाय लैम्डा कर देते हैं. n यहाँ पे नंबर है. हाँ नंबर. सो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो यहाँ से एमिट हुए हैं. ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, p नॉट t लैम्डा बाय एच सी. दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स. सो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, number of photons emitted, or is a point source. So ठीक है, सभी directions में जाएंगे. Now you have placed a detector here. So इस detector पे कितने collect होंगे निकालना है. Now let us use the unitary method. अब ये distance is L here. So number of photons by area. So number by area, this area will be 4 pi L square. P naught T lambda HC 4 pi L square. This is the number of photons per area. Into ये वाला area कर देते हैं. अब ये वाला इसका radius is 2d. So radius is 2d. So the number of photons collected here, number of photons here collected will be equal to this number per area into area. So P naught T lambda HC 4 pi L square into area. Area will be pi into 2d का whole square. इससे एक बार ट्राई करोगे, इसका आता है वैल्यू. Yes, sir. Match होता है. मैच हो रहा है. ओके ओके. सर आप 40th करोगे? 40. इसमें जो है photons with energy 5 electron volt are incident on a cathode C photoelectric cell. The maximum energy is 2. When photons are 6 electron or less, no photoelectrons will reach the anode. अब या इसमें जो है so the maximum 5 is equal to work function plus Ke max. 2 5 electron volt is equal to work function plus Ke max. Ke max कितना हो गया, 2 electron volt. The maximum energy इतना, तो इससे वर्क फंक्शन आ रहा है हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा. फिर when photons of energy 6, so 6 is equal to work function plus stopping potential EVS, right? तो अब जो है इसमें जो है ये वाला, हाँ, so this is 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना ये वाला. और इसमें जो है VS तो 3 ये आ जाएगा. The तो ये वाला C, you have this is cathode
दिस इज एनोड है ना, सॉरी दिस इज कैथोड या, और ये वाला एनोड जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकल रहे हैं. सो इसमें जो है स्टॉपिंग के लिए यू मेक दिस एज नेगेटिव, the voltage of the anode with respect to cathode ये क्या हो जाना चाहिए नेगेटिव, so it should be -3. Ashok, is this okay? No. लास्ट पार्ट एक और बार बता बता सकते हो? Okay, okay, हाँ. See, ये जो है you want stopping, there should be no current ना, तो इसका एनोड जो कैथोड से जो प्रिजनर्स निकल रहे हैं they must not be अच्छा नहीं able सर, to गॉट reach. इट सर. हाँ हाँ. So now what will we discuss? ये और गाइस इसमें और कुछ तो नहीं है इसमें. So because of Bohr's model का HCV नहीं किया था, because मेरे को होमवर्क दिया था वो ध्यान नहीं था. और यहाँ you have not जय अभी तक हुआ नहीं है ना, करना है राइट से. हाँ, तो मतलब डिस्कशन तो बाकी है उसका, बट सॉल्व नहीं हो किया था. ओके अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है guys. हाँ सर. ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि कल की क्लास में फिर होमवर्क देता हूँ, फिर बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स वाला. ओके सर. अरे लेकिन जय उसमें 1 to 17 तो कुछ दिया था ना होमवर्क. सर आई थॉट वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था, ओके ओके ओके, लाइक वो ध्यान नहीं था. चलेगा ठीक है ठीक है. लेकिन नेक्स्ट वीक में कंफर्म करना. नेक्स्ट वीक में फिर इस वीकेंड में थोड़ा सा टाइम इसके क्विज के लिए रखना. हाँ, और दूसरे अभी कुछ तो ज्यादा टेस्ट तो नहीं है ना किसी इस वीकेंड में कोई. नो सर, पर 2 क्लास है. इस वीकेंड में टेस्ट नहीं है ना, ठीक है ठीक है. फिर तो जो है थोड़ा सा ये वाला इस टॉपिक में भी ज्यादा टाइम देना है. हाँ, सो आई विल गिव यू होमवर्क इस कल थोड़ा सा वो पढ़ा के फिर आई विल एक्सरेज भी डिस्कस करेंगे अपन. सर आप एक बार एक्सरसाइज 4 का थर्ड पार्ट कर सकते हो? यस यस यस, हाँ हाँ, यू आर सेइंग एक्सरसाइज 4 ना. हाँ चलो ठीक है, एक्सरसाइज 4 का थर्ड. इसका सॉल्व एग्जांपल भी कर रहे हो ना जय? सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सॉरी. व्हिच वन? एक्सरसाइज 4 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड वाला. यस सर. हाँ, अरे तो ये किसी ने पूछा ही नहीं यार. ये डाउट तो पूछते हैं बच्चे. नोबडी आस्क्ड मी. इसका इवन एचसीवी का भी किसी ने नहीं पूछा. ये वाला इस बैच में पूछा है कि मुझे याद ही नहीं आ रहा. ये वाला एचसीवी में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है या फोर्थ क्वेश्चन, उसका बी पार्ट पूछते हैं बच्चे. कोई नहीं हाँ पूछा सर, है? 5th का बी पार्ट आंसर शायद मैच नहीं हो रहा था. हाँ सर, सभी- हो रहा था. We had अरे to इस- multiply it by the speed or divided by speed of light to get the answer. हाँ Like, ये किसी ने so ये तो हाँ ये तो यूजुअल क्वेश्चंस होता है. किसी ने पूछा यार, सरप्राइज भाई देखो अभी. सर वो होगा. अच्छा मतलब वो डीआर हम लोग और एक मिनट. सो आई विल टेल अशोक ये एचसीवी का फिफ्थ का बी पार्ट, देन यू विल टेल मी दैट एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन. ओके हाँ. तो मतलब वो जो डीआर कंसीडर करेंगे वो फोटॉन्स के बीच का टाइम लैग ही होगा ना, मतलब उनके स्पीड से डिवाइड करेंगे. नो नो नो, एक मिनट जाओ ना मेरे को. लेट मी प्लीज सी माय मेथड, फिर देन यू कैन कमेंट. हाँ चलो, तो ये फोटोन सन की रेस. सो यहाँ पे यू आर गिवन द इंटेंसिटी एट द अर्थ पे. यहाँ अर्थ को यहाँ एग्जैक्टली बिग बना रहे हैं. यहाँ अर्थ जला, so it's drawn exactly big. Big. अब जो है इंटेंसिटी गिवन है. ओके, सो इंटेंसिटी कितनी है इसमें? यहाँ पर 1.4. इंटेंसिटी इज 1.4 into 10 to power 3. This is equal to capital N into hc by lambda. 1.4.
और वेवलेंथ, यस, n और ये वाला 1240 डिवाइडेड बाय 500 और इनटू 1.6 into 10 to power minus 90 ये वाला, हाँ। तो यहाँ से n आ जाएगा। Guys, क्या calculate the number of photons falling per second each square? हाँ, ये a part का कोई आंसर बता सकता है? Please check and tell. A part का Sir, आंसर 3.5 into 10 to power 21. 3.5 into 10 to power 21. Yes. Okay, into 10 to power 21. 3.5 10 to power 21 photons per meter square per second. चलो ठीक है। Now B part. B part में जो है how many photons are there in each cubic meter near the earth surface? एक cube बनाते हैं यार, चलो। So let us make a cube exactly big यहाँ show कर रहे हैं। It's very small compared to the distances, compared to the size of the earth and the sun. और ठीक है, ये उसका ये फेस, दिस फेस, इस फेस से जो भी फोटॉन्स इंटर करेंगे तो इस फेस, इसका एरिया क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग, photons entering in cube will be 3.5 into 10 to power 21 photons per second enter कर रहे हैं। फिर ये फोटोन, ये दिस इज 1 मीटर, ये जो है ठीक है, और ये वाला साइड जो है, यहाँ से फोटोन को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम जो लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, इतना टाइम लगेगा। सो अगर तो हम बोलेंगे यार, अगर इफ यू से नाउ t इक्वल टू 0, और इस टाइम के बाद जो भी देखोगे वो वाले फोटॉन्स, t इक्वल टू 0 पे यहाँ फोटोन इंटर किया, 1/c पे जो इंटर किया हुआ फोटोन यहाँ हो जाएगा, और उसके बाद के जो भी फोटॉन्स है वो सब इसी बॉक्स में ही रहेंगे। सो दैट मीन्स इतने टाइम के बाद, सो देयरफॉर total photons in this cube, in this 1 meter cube will be this into time, 3.5 into 10 to power 21 into time. Time कितना है? 1/c. Ashok, is this okay? Yes, I got it. Also, हाँ, like what I did was like there are n photons releasing per second and striking per meter square, and they travel 3 into 10 to power 8 meters in 1 second. So there will be n photons in 3 into 10 to power 8 meter cube of volume, and then from unitary method I did that, like found per unit cube. ओके, फिर यूनिटरी मेथड से टाइम कैसे किया उसमें एक बार? सर टाइम तो like already per second था ना, like n photons released per second, so ओके पर सेकंड आपने मान लिया, ठीक है ठीक है। ओके, सर इसका C part, oh C part, how many photons does the sun emit per second? oh, सन कितना एमिट करेगा पर सेकंड? चलो भाई ठीक है, तो ये तो आ गया था, ये जो आया है ये कितना है? पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। अरे यार नीचे है ना, सॉरी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो अब मीटर स्क्वायर पर सेकंड को जो है हमें पर सेकंड बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ओके सर, इनटू ओके एरिया से, ओके कौन सा एरिया? कौन सा एरिया? ये पूरा एरिया स्फीयर का। यस सर। तो ये हो जाएगा जो है 3 का क्या हो जाएगा? 3.5 into 10 to power 21 into 4 pi अर्थ सन डिस्टेंस का स्क्वायर, which is 1.5 into 10 to power 11, 1.5 into 10 to power 11 का होल स्क्वायर।
चलो ठीक है। सो अब अशोक वाला एक्सरसाइज 4 का दैट क्वेश्चन हाउ विल यू सॉल्व? सर ऐसे ही करेंगे, मतलब सिमिलर अप्रोच ही करेंगे। करेक्ट है ना? उसमें यार फोटोन फ्लक्स, एवरेज फ्लक्स मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं यूनिट से समझ रहा था। डेंसिटी मींस फोटोन पर सेंटीमीटर क्यूब, फ्लक्स मतलब फोटोन पर सेंटीमीटर, है ना, पर सेकंड, लाइक दैट। हाँ सर, उसका बस थर्ड पार्ट ही नहीं आ रहा, ये डेंसिटी वाला। थर्ड पार्ट वाला नहीं आ रहा है, ओके। हाँ नहीं, वो अभी आ जाएगा, वो अभी आ जाएगा। At what distance average density is 1 photon per centimeter cube? So how will you find? सर हम लोग आर डिस्टेंस पे ऐसा एक सिमिलर क्यूब कंसिडर करेंगे, वहाँ पे हम 1 लोग को, सेंटीमीटर का ना, 1 सेंटीमीटर का, हाँ। हाँ, एंड बाद में टाइम निकल जाएगा, 1/c को हम लोग सेंटीमीटर में रखेंगे, एंड बाद में करेक्ट हम लोग को वो आर पे इंटेंसिटी भी पता रहेगा, तो उससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ। तो मुझे एक्सरसाइज 2 के 5th में डाउट था। एक्सरसाइज 2 वाला, हाँ। Exercise 2 fifth question. So exercise 2, a beam of ultraviolet light of all wavelengths pass through a hydrogen gas at room temperature in x direction. All the photons emitted due to electronic transition inside the gas emerge in y direction. Okay. Or let A and B. Okay, मतलब ये photons जो हैं आपके ultraviolet, ये x में जा रहे हैं और इंटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से वो है, वो वाई डायरेक्शन में एमिट हो रहे हैं, ट्रांजिशन वाले, ट्रांजिशन से जो फोटॉन्स है, ओके। सो सम ऑफ दी, हाँ, सो लेट ए एंड बी डिनोट द लाइट्स इमर्जिंग फ्रॉम द गैस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। सो ओके, ए और ये वाला बी, वाई डायरेक्शन का बी है, हाँ। सम ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ will be absent in A. Incident wavelength will be absent in A. Guys, क्या होगा? अच्छा, राइट होगा। Some of the wavelengths incident वाला absent होगा, क्यों? क्योंकि कुछ वो फोटोन एमिशन में गया था, यूज हुआ। हाँ, मतलब जो ये जो हाइड्रोजन है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करके अपने आप को एक्साइट कराएंगे, एक्साइट करा के फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, तो वो सब के लिए तो यहीं से आएगा। तो ये वाले कुछ जो भी एब्जॉर्ब हो गए हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे, करेक्ट ना? हाँ। फिर जो है फिर नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है? ओनली दोस वेवलेंथ्स विल बी प्रेजेंट व्हिच आर एब्सेंट इन ए। मान लो जो है ग्राउंड स्टेट है ना, देखो यार 13.6, 3.4, तो मान लो इसको एक्साइट करा के यहाँ पहुंचा दिए, तो 12.1 वाला एब्सेंट मिला ए में। अब बी में क्या क्या मिलेगा? अब ये यहाँ बैठा है तो यहाँ से ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं, राइट? 12.1 या 12.1 से भी कम भी आ सकते हैं, राइट? सो 12.1 या 12.1 से कम वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हमें बी में मिल सकते हैं। So only those wavelengths which will be present in B which are absent in A, no, less than also may be present. Correct, Amol? यस सर। और B will contain some visible light, yes. अगर मान लो जो है कोई लोग 2 पे आ रहे हैं, 2 पे आ रहे हैं मतलब जो है नॉर्मल सीरीज, तो विजिबल वाला भी मिल सकता है, और इंफ्रारेड, यस, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो कुछ पर कमेंट नहीं कर सकते ना, विजिबल। और यू आर सेइंग कि will contain, और यहाँ सैंपल में कितने हैं? में बोलना ठीक रहता ना, ज्यादा अच्छा होता, राइट? हाँ सर, क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट है तो वो कैसे सर? रहेगा?
और विल में क्या सर problem है? बट विशाल सर ने बोला था कि सैंपल है तो मतलब आउट ऑफ मतलब बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि ऑलमोस्ट सारे एक्साइटेशन पॉसिबल हो इन द गिवन रेंज ऑफ वेवलेंथ। इसमें दिया है पास थ्रू हाइड्रोजन गैस, ये सैंपल है तो ये तो हाँ तो सर कौन डी सा भी करेक्ट ही हो जाएगा। भी, हाँ मतलब हाँ हाई पॉसिबिलिटी होगी, हाँ ऑब्वियसली, मतलब उसमें तो कितना बिलियंस, उस बहुत ज्यादा नंबर पे होंगे ना, तो एवोगाड्रो नंबर्स की रेंज में होगा हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर, तो एक तो आएगा ही डेफिनेटली, राइट? ओके सर, गॉट इट। हाँ सर सी, सिक्स्थ वाले का सी नहीं होना चाहिए? 6 वाले में जो है, इफ radiations allow wavelengths from ultraviolet to if radiations allow wavelengths from ultraviolet to infrared is passed through hydrogen gas at room temperature, absorption lines will be observed. Absorption lines. If radiations of allowable wavelengths. सर बोथ ए एंड बी राइट? यस सर, तो ऑप्शन सी, क्योंकि सर हमने केमिस्ट्री में वैल्यूज के साथ वो किया था, तो Okay, okay, उसमें उसके रेंजेस भी दिए थे, तो इसमें दोनों थे, लाइमन एंड बामर। हाँ ultraviolet Lyman infrared. was completely ultraviolet, and Ultraviolet. Balmer के first 4 were visible and other was ultraviolet. यस सर। Okay, okay. तो absorption वाले जो होंगे, नहीं absorption बोल रहा है कि emission? एब्जॉर्प्शन। Absorption बोल रहा है ना? Or absorption lines are the lines which are अरे left because those photons are absorbed, right? हाँ, तो ये और ग्राउंड फिर स्टेट second से से नहीं, अभी second, तो जैसे अभी जो हाइड्रोजन गैस है वो तो ग्राउंड स्टेट में है, हाँ yes sir. तो ग्राउंड स्टेट्स में ऊपर ऊपर पहुंचाना है तो लाइमन वाला मिसिंग होगा ना, राइट? तो नहीं समझा मैं। Okay, like first energy level से excite हो रहे होंगे, it's like तो जैसे diamond वाले ही होंगे। सर कुड यू एक्सप्लेन दिस अगेन? मैं सोच रहा था, देखो यू हैव हाइड्रोजन गैस है और वो रूम टेम्परेचर पे है, तो ठीक है ग्राउंड स्टेट में है ना, और यहाँ बातें करनी है, वी वांट टू टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन लाइंस ओनली, नॉट द इमिशन, हाँ ओनली एब्जॉर्प्शन लाइंस। सो ग्राउंड वाला जो एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा तो 1 से कहीं ऊपर जाएगा, तो वो सब तो लाइमन वाले ही होंगे ना। उल्टा जब आएंगे तो जो है, अगर हायर में पहुंच गए, एब्जॉर्ब करने के बाद हायर में पहुंच गए, फिर जब नीचे की तरफ छलांग लगाएंगे तो बामर और लाइमन दोनों आएंगे इमिशन में, लेकिन एब्जॉर्प्शन वाला तो यार यही होगा ना। गाइस, जय करेक्ट क्या ना? हाँ yes sir. हम यस सर। हाँ, दे आर आस्किंग, मैंने भी ठीक से पढ़ा नहीं, दे आर आस्किंग ओनली अबाउट एब्जॉर्प्शन लाइन, नो नॉट एमिशन लाइन। So can you send like Bose models complete homework once to the group? अरे हाँ, Okay, bro. बोर्स वाला ना, बोर्स वाले का जो है अमोक है सेंड ना, अमोक भी उसने पोस्ट किया था क्या? यस सर, भेजा था पर शायद वो मिस हो गया होगा। ओके ओके, कैन यू टैग इट अगेन यस सर, आई विल टैग इट। प्लीज डू दैट। हाँ Hello sir. यस यस, हाँ Sir, can you explain rest mass और photon का concept एक बार? फोटोन का तो इसका रेस्ट मास तो 0 ही है ना। नहीं, होता क्या है rest mass? ओ, रेस्ट मास जो है, जैसे हम मान लो कोई पार्टिकल विच इज हैविंग मास, अगर मान लो जो है रेस्ट पे है तो ठीक है एम नॉट, और वही पार्टिकल अगर मूव करने लग जाता है तो रिलेटिविटी में जो है मास को इस तरीके से लेते हैं, रेस्ट मास मतलब द वैल्यू व्हेन इट इज हैविंग 0 स्पीड डिवाइड बाय, ऐसा करके लेते हैं, मास को ऐसा लिया जाता है इन रिलेटिविटी। हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना।
नो ये अपने कोर्स में नहीं है, दिस इज नॉट देयर इन सिलेबस. तो बस याद रखें कि फोटोन का रेस्ट मास इज 0. फोटोन का इज 0. यस. ओके यस सर. और सर जय ने वो एक क्वेश्चन पूछा था आपको एचसीवी के लास्ट सम में कि वो व्हाई डू वी टेक इट एट द परपेंडिकुलर वाला डी क्यों हाँ, लेते हैं? ओ परपेंडिकुलर वाला क्यों लिया, राइट? तो वहां पे उसमें दिया है ओ ये सर्कुलर मोशन. सर कैन वी टेल कि इसमें दे हैव आस्क्ड फॉर लैम्डा मैक्सिमम, राइट? मतलब वेलोसिटी शुड बी मिनिमम because like lambda maximum है, मतलब energy of the electron which is released should be minimum ना. ओके. नहीं इसमें ना, see they are asking about the 34th question. Find the maximum wavelength of light so that some of the photons may go round the ion along a circle. ठीक है ना? अब जो है which may go along the circle. सर्कल में कौन कौन जा सकता है? The ones having the tangential speed only. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो थोड़ा आगे जाके उसके बाद एक टाइम आ जाए जब वो आगे जाके सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, लाइक डी के छोटा आर पे. और you are saying कि ऐसे एंगल पे निकला वाला और फिर ऐसा? बेंड होते होते लाइक एक सर्कुलर ट्रैक में No. चला जाए. बट नो 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 नो, फिर उस केस में जो है वो तो वैसे ही हो जाएगा ना, ग्रेविटेशन जैसा, याद है वो एक पार्ट, फिर वो एलिप्स वाला पाथ हो जाएगा ना. हाँ आई गेस समझा मैं तो. हाँ एलिप्स यस. आएगा. सो हाँ, वी thank you. हैव ये वाला हो गया. अब जो वेलोसिटीज जिनकी ऐसी हैं टैंजेंशियल, अब टैंजेंशियल वेलोसिटीज हैं, अब जो है यू वांट टू फाइंड मैक्स, क्या पूछा है यहाँ हाँ सर पर? इसके आगे आ जाएगा, मुझे समझ में आ गया Okay. सर. कोई डाउट था. थैंक यू. चलो guys, so ये स्टूडेंट्स फिर जो है नेक्स्ट क्लास के लिए फिर गाइस आई विल गिव यू द होमवर्क वाला बोर्स वाला. चलो यस, हाँ यस हम लोग ने सेंड भी कर दिया. चलो गाइस फिर ये वाला आज ट्राई करो. विल देन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. हाँ स्टूडेंट्स. थैंक यू सर. Thank you, sir. ओके स्टूडेंट्स, बाय ऑल. थैंक यू.